السلام علیکم میرے پیارے ویورز، ویلکم بیک ٹو یور اون چینل انفینٹ ناولس۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلے بنا دیر کے مرمی کائزان کی ایپیسوڈ 25 کو ریڈ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مظہر بادشاہ بھاگتے دوڑتے گھر واپس پہنچا تو سامنے ہی سے ٹیبل پر ناشتہ کرتی اس کی بیٹی نظر آئی تھی۔ اس کی جان میں جیسے جان آ گئی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اندر اس کے پاس آیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ میں نے تمہیں کہیں پر بھی جانے سے منع کیا تھا نا؟ کیا تمہیں میری بات ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آتی؟ مشا وہ انتہائی غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے کر رہا تھا۔ او کم آن ڈیڈ، میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی اور آپ مجھ سے اس طرح سے بات کیوں کر رہے؟ اپنی دوست سے ملنے کے لیے گئی تھی، کوئی گھر سے بھاگ نہیں گئی تھی۔ حد ہے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی میں؟ وہ غصے سے ٹیبل چھوڑتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انداز انتہائی بدتمیزانہ تھا۔ وہ ایسی ہی تھی اور مظہر پاشا سے اس کے بات کرنے کا انداز بھی ایسے ہی تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے مظہر پاشا نے اس کی ماں کو مارتے مارتے جان سے مار ڈالا تھا۔ وہ نفرت کرتی تھی اپنے باپ سے ہمیشہ سے، لیکن مظہر پاشا اپنی اکلوتی اولاد سے بہت محبت کرتا تھا، اس پر جان چھڑکتا تھا، لیکن شاید اس کی بیٹی میشا کو اس کی جان چاہیے ہی نہیں تھی۔ وہ تو ہر وقت اس سے جان چھڑاتی رہتی تھی، لیکن مظہر پاشا اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی باہوں میں قید پایا۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھ کے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے کپڑوں سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ جاگ رہا تھا اور ایک دو چکر باہر کے بھی لگا چکا ہے۔ گڈ مارننگ میری جان، اس کے چہرے کو اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، گڈ مارننگ۔ وہ اس کی باہوں میں ایک بھرپور انگڑائی لیتی اس کی نگاہوں میں خمار سا اتار چکی تھی۔ گاڑی میں چلا کر لایا تھا کل رات کو، اور پھر اس نازک سے وجود کو اٹھا کر یہاں کمرے میں بھی میں لایا تھا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور تم انگڑائیاں ایسے لے رہی ہو جیسے گاڑی تم سر پر اٹھا کر لائی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ارے گاڑی چلانے سے کئی زیادہ مشکل اتنا لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، میری تو کمر بھی اکڑ گئی بیٹھ بیٹھ کر، اور آپ مجھ پر گاڑی چلانے کا احسان جتا رہے ہیں؟ وہ ناراض سی بولی تو کائزان نے فوراً اپنا ایک ہاتھ اپنے کان کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میری کیا مجال کہ میں ملکہ عالیہ کے سامنے اپنا احسان جتاؤں؟ نو نیور میری جان، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم استنبول جا رہے ہیں۔ تمہیں اب تک میں ترکی میں کچھ بھی خوبصورت دیکھنے کو نہیں ملا، اب ملے گا۔ میں تمہیں وہاں کچھ ایسا دکھاؤں گا جو مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ خیر چلے دیکھ لیتے ہیں آپ کی خوبصورت جگہ، ویسے مجھے تو ایسی کوئی امید نہیں آپ کی ترکی بلکہ استنبول سے، لیکن وہ کیا ہے نا کہ میں بہت اچھی ہوں اور کسی کا دل نہیں توڑ سکتی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنی اچھائی بیان کی تھی، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلا کر قبول کیا تھا کہ وہ بہت بہت زیادہ اچھی ہے، جبکہ کائزان کا پکا پکا ارادہ تھا اس پر یہ ظاہر کرنے کا کہ ترکی بہت خوبصورت ہے۔ یقیناً اب وہ اسے کچھ الگ دکھانے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ تو یہ ہے آپ کا استنبول؟ وہ استنبول میں انٹری کرتے ہوئے سامنے لگے بورڈ پر پڑھتے ہوئے اس سے کہنے لگے تھے۔ ہاں میری جان، یہ ہے استنبول، ترکی کا سب سے قدیم شہر۔ مجھے یقین ہے اس شہر کو ہم ایک دن میں ایک نہیں دیکھ سکتے، یہ بہت بڑا شہر ہے، اس میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے، اسی لیے میں نے یہاں کے ایک ہوٹل میں 3 دن کی بکنگ کروا لی ہے۔ 3 دن ہم صرف اس شہر میں رہیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے، بتائیے مجھے کہ آپ مجھے سب سے پہلے یہاں کہاں لے کر جائیں گے؟ وہ ایکسائٹیڈ ہو کر اس سے پوچھنے لگی۔ نیلی مسجد، میں تمہیں سب سے پہلے نیلی مسجد یعنی سلطان احمد مسجد لے کر جاؤں گا۔ اس شہر کی سب سے قدیم اور خوبصورت مسجد ہے، مجھے یقین ہے کہ تم وہاں جا کر کافی زیادہ انجوائے کرو گی۔ مسجد میں انجوائے نہیں کیا جاتا، عبادت کی جاتی ہے، وہ جیسے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے جانے من، ہم عبادت ہی کر لیں گے۔ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتا اپنے لبوں سے لگا گیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ کھل کر ہنسی۔ ویسے آپ اسے نیلی مسجد کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا اس کا رنگ نیلا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ ہاں، اس کی دیواروں کا رنگ نیلا ہے، اس لیے اسے نیلی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ سلطانوں کے دور کی مسجد ہے، ایک وقت میں یہاں حکومت کی جاتی تھی، باقی تم وہاں چل کر خود ہی دیکھ لینا، ہم وہیں پر جا رہے ہیں۔ آخر وہ اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ اسے دور سے ہی ایک بہت بڑی مسجد نظر آ رہی تھی جس کا رنگ نیلا تھا، وہ بے حد خوبصورت سے بہت سارے گنبد میں ایک بڑا مرکزی گنبد تھا۔ اس مسجد کی تاریخ کہیں نہ کہیں مسجد
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। जब ये मस्जिद तामीर हुई थी तो यहाँ के शहजादे को इसकी खबर मिली। वो अपनी तालीम मुकम्मल करके यहाँ आया और देखा कि यहाँ 6 गुम्बद है। इस वक्त 6 गुम्बद सिर्फ मस्जिद नबी पर ही होते थे। बाद में मस्जिद नबी की तामीर में एक गुम्बद का इजाफा कर दिया गया। वो आहिस्ता आहिस्ता इसे बता रहा था जबकि वो काफी एक्साइटेड होकर इसे सुन रही थी। चलो आओ, अब तो मैं मस्जिद के अंदर लेकर चलता हूँ। इस मस्जिद में ज्यादातर मजदूरों ने अपने हाथों से काम किया है। इस दौर में कोई मिशनरी काम नहीं करती थी। इस मस्जिद के अंदर 200 से ज्यादा शीशे की खिड़कियां हैं ताकि कुदरती रोशनी अंदर आती रहे। अंदर से ये और भी ज्यादा खूबसूरत है। वो इसका हाथ थामे से अंदर की तरफ ले जाने लगा था। दरवाजे के करीब एक साइड के साथ इन्होंने अपने जूते उतार दिए। इस मस्जिद की सबसे खास बात ये कि जुम्मे के दिन जब यहाँ कोई इमाम खुतबा देता है तो इस मस्जिद के हर कोने से हर जगह से इस इमाम को देखा जा सकता है। इसने जैसे से एक नई बात बताई थी। वो हैरत से मस्जिद के अंदर जाने को बेताब हुई। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए। ये इलाका कदीम दौर में सुल्तान अहमद का इलाका था, इसीलिए इस मस्जिद को सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद की एक और खास बात ये भी है कि ये मस्जिद पूरा साल खुले रहती है। बंद होती है तो सिर्फ नमाज के 90 मिनट के लिए, और सिर्फ इसी वक्त यहाँ पर तस्वीर खींचने की इजाज़त नहीं होती, वरना यहाँ पर आने वाले लोग इस मस्जिद के हर रंग को अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं। वो इसे न जाने क्या क्या बता रहा था जबकि वो इसे सुनते हुए इस मस्जिद के अंदर कदम रख चुकी थी। मस्जिद के अंदर कदम रखते ही जैसे वो हर बात भूल चुकी थी। यहाँ देखने के लिए इतना कुछ था कि इसे निगाहें हटा नहीं पा रही थी। पूरी मस्जिद में अंदर नीली रंग की टाइल्स लगाई गई थी। इतना ही नहीं बल्कि आगे खिड़कियों में इसे बहुत सारे रंग एक साथ नजर आ रहे थे। ये भी कुदरत का ही कोई निजाम था या फिर सिर्फ तैयारी इस तरीके से किया गया था। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी, बस वो एक खूबसूरत तरी मस्जिद को देख रही थी। यहाँ इनके साथ ना जाने कितने ही लोग भी आए हुए थे इस मस्जिद की खूबसूरती को देखने के लिए। वो जितना हैरान होती कम था। खुदा की कुदरत के बाद इंसान भी इतना शऊर और अकल रखता है कि इस तरह की चीज तख्लीक कर सके। यकीन करना नामुमकिन सा था, लेकिन ये भी यकीनन खुदा की दी हुई सलाहियत थी जिसकी बिना पर वो इतना खूबसूरत शाहकार तैयार कर पाए थे। इसने न जाने कितने साल पुरानी बनाई गई इस मस्जिद के कारीगर को आज दाद दी थी। क्या वजान, तुम तो यहीं पर खो गई। अभी तो तुम्हें आया सूफिया भी दिखानी है। वो किसी और चीज का जिक्र कर रहा था। इसने कंफ्यूज होकर इसे देखा। एक और बहुत ही खूबसूरत मस्जिद, यकीनन वो भी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। हालांकि वक्फे से आने वाले ज़लज़लों की वजह से इस मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक कि 1935 से पहले इस मस्जिद को एक तारीखी मुकाम करार दिया गया था। ओ, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तुम्हें वो मस्जिद दिखाकर मैं तुम्हें यहाँ का सबसे मशहूर खाना खिलाऊंगा। टर्की खानों में भी किसी से पीछे नहीं है। लोग दूर दूर से सिर्फ इस्तांबुल के अलग अलग और नए नए खाने के लिए आते हैं। वो इसे मस्जिद एक्साइटेड कर रहा था। एक नजर पूरी नीली मस्जिद को देखते वो इसका हाथ थाम कर बाहर सहन की तरफ आए, जहाँ ऐसे सिर्फ 4 गुम्बद नजर आ रहे थे लेकिन बेतहाशा खूबसूरत। अब इसे यकीन करना पड़ गया था इस पर। इस्तांबुल सच में बहुत खूबसूरत था। वो तो पहले ही मुकाम पर इस्तांबुल की फैन हो गई थी। आया सूफिया भी एक बहुत खूबसूरत मुकाम था जो इसे बेहद पसंद आया था। वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मस्जिद थी, लेकिन नीली मस्जिद से ज्यादा नहीं। वो तो नीली मस्जिद की दीवानी हुई थी और अब वो इसे गलाता टावर लेकर जा रहा था। यहाँ पर इन दोनों ने कुछ खाना था। दोनों को ही बहुत भूख लगी हुई थी। मर्द ने तो कहा था कि इसे कोई पाकिस्तानी खाना चाहिए, लेकिन कायजान ने साफ इनकार कर दिया था। इसने कहा था कि यहाँ गलाता टावर में इसे वही खाने को मिलेगा जो यहाँ पर मिलता है। इस पर पहले तो इसने खूब मुंह बनाया था, लेकिन अपने भूखे पेट की खातिर फिलहाल कुछ भी खाने को तैयार थी। लेकिन ये गलाता टावर पता नहीं कितना दूर था कि वो वहां पहुंच ही नहीं पा रहे थे। गाड़ी एक तरफ रोकते हुए इसने इसे गाड़ी से नीचे उतरने के लिए कहा, तो इसने दोनों हाथ सवालिया अंदाज में ऊंचे किए थे जब इसने गाड़ी से सामने सड़क की तरफ एक बहुत बड़ा टावर इसे दिखाया था। वो क्या है, कोई जगह है क्या? ये तो कोई खंबा नहीं लग रहा। मेरा मतलब है टावर को तो खंबा ही बोलते हैं ना, तो ये तो कुछ और ही है। ऐसा लगता है जैसे वो बारबीज की फिल्मों में नहीं होता। वो बहुत दूर, बल्कि बहुत ही ज्यादा दूर नजर आते एक टावर को देखते बोली तो वो मुस्कुराया था। मुझे यकीन है तुम्हें अपनी बारबी वाली किसी भी फिल्म से ज्यादा ये पसंद आने वाला है। चलो आओ, अब मजे देर नहीं करते, हमें काफी ज्यादा चलना होगा। वो इसे उतरने के लिए कहते हुए गाड़ी लॉक करने लगा था, जबकि चलने का नाम सुनकर वो थोड़ी सी शक्ल बना गई थी क्योंकि वो बिल्कुल भी चलने की कंडीशन में नहीं थी। इसे फिलहाल बहुत भूख लगी हुई थी। क्या गाड़ी वहां नहीं जा सकती? हम इतनी दूर कर चल कर जाएंगे।
इतनी भूख लगी हुई है मुझे, वो परेशानी से कहने लगी जबकि वो आगे बढ़ता हुआ अचानक इसे अपने करीब करता अपनी बाहों में उठा चुका था। नहीं मेरी जान, हम वहाँ गाड़ी लेकर नहीं जा सकते। अलाउ नहीं है, यहाँ लोगों की चलने की जगह बनाई गई है, तो गाड़ी यहीं तक आ सकती है। बाकी वहाँ तक हमें चलकर जाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा कायज़ान है ना तुम्हें हर मुसीबत से निकालने के लिए। इसके माथे पर बोसा देते हुए उसे बिल्कुल रिलैक्स कर चुका था। आप इतने सारे लोगों में मुझे इस तरह से उठा कर ले जाएँगे? वो इसे वहाँ मौजूद लोगों का एहसास दिला रही थी जिनकी तादाद को गिनना आसान नहीं था। इतना बड़ा बाज़ार जहाँ न जाने कितने ही लोग थे। इनके बीच से इस तरह से जाते हुए मर्म को तो काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी। हाँ, मैं तुम्हें इसी तरह से इन सारे लोगों के बीच से उठा कर लेके जाऊँगा और तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। ये सब लोग अपनी-अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है। किसी के पास इतना फ़ालतू वक़्त नहीं होगा कि हम पर बर्बाद करेंगे। यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है। अब मज़ीद बातें हम रास्ते में चलते हुए करते। वो कदम बढ़ाते हुए मुस्कुराया था जबकि वो उसके सीने पे सर रखती हर सोच से अलग होकर इस खूबसूरत वक़्त को एन्जॉय करने लगी थी। हाँ, कल तक इसे तरक्की खूबसूरत नहीं लग रहा था लेकिन आज इसे तरक्की की खूबसूरती पर यकीन आ चुका था। ये लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह से नाचते हुए तो ये लोग रिस्क की तौहीन कर रहे हैं। इस तरह से खाने-पीने की चीज़ों का मज़ाक नहीं बनाना चाहिए। इसे यहाँ आने के बाद ये पहली बार बुरी लगी थी। सामने आइसक्रीम के कुछ स्टॉलर्स लगे हुए थे जिसमें साथ ही म्यूजिक बजता था और लोग वहाँ अपनी वीडियोस बनाते हुए नाचते हुए आइसक्रीम ले रहे थे। ये यहाँ का तर्ज जिंदगी है मर्म, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जीते। हम किसी की ज़िंदगी में बगैर इसकी मर्जी के शामिल नहीं हो सकते। किसी की कोई बात बुरी लगे तो एक दफ़ा से बता दो, बाकी वो अपने हिसाब खुद दे देगा। अपने आभार को इसने खुद देखना है। हर इंसान को अल्लाह ने इसकी ज़िंदगी जीने की इजाज़त दी है। हम कोई नहीं होते किसी पर उँगली उठाने वाले। और दूसरी बात, तरक्की का ज़्यादातर हिस्सा अमेरिका के हिसाब से चलता है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो जिस तरह अमेरिका के लोग अपनी ज़िंदगी गुज़ारते, टर्किश भी वैसे ही गुज़ारते। बहुत कम लोग हैं यहाँ जो इस्लामिक तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। वो यूं ही चलते हुए आगे बढ़ रहा था जबकि मर्म अब शर्म और हया भुलाए इस बाजार को हर तरफ से देख रही थी। यहाँ की सड़क बहुत बड़ी थी लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कोई गाड़ी, मोटर साइकिल या साइकिल तक नहीं थे। यहाँ की सबसे अच्छी बात तो ये थी कि यहाँ के रूल्स हर इंसान के लिए बराबर थे। हर कोई असूलों पर अमल करता था और असूलों पर अमल ना करने वाले के लिए जगह जगह जुर्माने के बोर्ड्स लगाए गए थे। हेलो जानम, हम आ गए गलाता टावर में। इसने सामने बहुत लंबी और बड़ी इमारत की तरफ इशारा किया था जिसके ऊपर गुंबद सुर्ख रंग का था और बाकी सारी वो सफ़ेद कलर में कवर थी। ये टावर मर्म के बकौल गलाटा खंबा गोल शेप में था जिसके बाहर हर तरफ से रास्ता जाता था। इसकी लंबाई कितनी थी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो एक ही नज़र में से देख नहीं पा रही थी। काहसान ने इसे अपनी बाहों में उठाया हुआ था इसीलिए वो पूरी तरह से सर ऊपर तक लेकर गई थी लेकिन फिर भी इसकी चोटी बहुत ऊंचाई पर थी। ऊपर की तरफ हर तरफ से ग्रिल लगी हुई थी और वहां से बहुत सारे लोग नजर आ रहे थे। मैंने वहां ऊपर जाकर तस्वीरें बनानी है। इसने ऊपर ग्रिल की तरफ इशारा किया था। हाँ बिल्कुल जानेमन, हम वहीं तो जा रहे हैं। वो मुस्कुरा कर अंदर दाखिल होते हुए उसे नीचे उतारता सामने मौजूद आदमी को अपना आईडी कार्ड वगैरह दिखाने लगा था। आखिर वो लिफ्ट के जरिए ऊपर वाली बिल्डिंग में आ चुके थे। इसने जैसे ही अंदर कदम रखा इसे बहुत बड़ा हॉल नजर आया था जहाँ एक तरफ ग्रीन लिबास में कुछ लड़कियां डांस कर रही थी जबकि कुछ पार्के पर कुछ मर्द भी इसी के अंदाज में डांस कर रहे थे। बिल्कुल सेम टू सेम स्टेप कर रहे थे। बीच में कई सारे टेबल्स लगे हुए थे जहाँ लोग बैठे अपने अपने खाने को एंजॉय कर रहे थे। कुछ लोग आराम सुकून से पुरसुकून अंदाज में म्यूजिक बजा रहे थे। इनका म्यूजिक किसी के कानों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था बल्कि एक रोमांटिक सा माहौल क्रिएट कर रहा था। वो ग्रिल वाली जगह किधर है? इसने इसके कान के करीब सरगोशी की थी जबकि वो इसका हाथ थामता इसी टेबल की तरफ लेकर जा रहा था। थोड़ी देर में वहां एक वेटर आया था जिसको कहकर कायसान ने वही साइड वाली टेबल बुक करवाई थी और अगले 2 मिनट के अंदर इसने एक बटन प्रेस किया था। इस टेबल के आगे पीछे एक ग्रीन रंग का बहुत बड़ा सा कपड़ा आकर इस जगह को पूरी तरह से कवर कर गया था। मैम ने देखा था बीच बीच में कई कोनों पर इसी तरह से ग्रीन रंग का कपड़ा लगाया गया था। इसने इसे किसी शहजादी की तरह अंदर कुर्सी घसीट कर बिठाया तो वेटर ने जल्दी से सामने लगे ग्रीन कलर के ही कपड़े को बटन दबाकर हटाया था और एक बेहद खूबसूरत सा नजारा पेश करती एक ग्रिल ओपन हो चुकी थी।
ये रही तुम्हारी वो ग्रिल वाली जगह। इसने सामने की तरफ इशारा किया तो वो कुर्सी घसीट कर अगले ही लम्हे इस तरफ भागी थी। काले रंग की लोहे की ग्रिल के साथ इसने नीचे की तरफ देखा तो वो बड़ा सा बाजार जिसने सामने नजर आ रहा था। इसके सामने बहुत मसरूफ जिंदगी थी। हर कोई अपनी ही जिंदगी में बिजी था। फासले पर होने की वजह से वो किसी को भी ठीक से देख नहीं पा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पूरा इस्तांबुल शहर इसकी आंखों के सामने आ गया हो। कायसान ने इसके पीछे आते हुए इसे अपनी बाहों में कैद किया था। खूबसूरत म्यूजिक के साथ अपनी आंखों के सामने खूबसूरत नजारा देखते हुए वो इसके सीने पर सर रखते इस खूबसूरत जगह की खूबसूरती में खोती चली जा रही थी। ये सब रंग जो इसके हर तरफ था, ये इस वक्त इसे अलग से सुकून बख्श रहा था। दूर आसमान पर इसे अजीब से परिंदे उड़ते नजर आ रहे थे। इससे पहले कभी ये परिंदे नहीं देखे थे। जबकि दूर फासले पर इसे नीला समंदर नजर आ रहा था, जो इतना खूबसूरत लग रहा था कि वो बयान नहीं कर सकती थी। तरक्की खूबसूरत है ना? इसने इसके कान में सरगोशी की थी। वो खुलकर मुस्कुराई थी। बहुत, बहुत ज्यादा। वो खिलखिलाते हुए बोली तो इसने इसकी मुस्कुराहट को अपने लबों से छुआ था। वो आराम सुकून से तस्वीरें बना रही थी, वो भी अपने फोन में। आज ही कायसान ने इसे फोन दिलाया था जिसकी मेमोरी तकरीबन वो आधे से ज्यादा फुल कर चुकी थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी ज्यादा स्पेसेस वाले फोन का भी ये लड़कियां ये हाल कर सकती है। वो तकरीबन 3-4 हजार के आसपास तस्वीरें बना चुकी थी और इसने वापस होटल जाकर चेक करना था कि इसमें से कौन सी तस्वीरें रहेंगी और कौन सी डिलीट होंगी। डार्लिंग तुम पिक्चर्स बनाओ समंदर की, तब तक मैं एक जरूरी कॉल करके आता हूँ। इसने आहिस्ते से इसकी माथे को चूमते हुए अपना फोन निकाला था। हाँ ठीक है, बस जल्दी आइएगा, हम सेल्फी बनाएंगे। उस समंदर के बिल्कुल पास खड़ी हवाओं में उड़ते वो छोटे छोटे दिए देख रही थी। पहले वो बहुत दूर थे तो इसे समझ नहीं आ रहा था कि हवाओं में ये चमकती हुई चीज क्या उड़ रही है, लेकिन पास आने पर इसे पता चला कि वो फायर बलून्स थे। गलाता टावर में लंच करने के बाद इन लोगों का अगला टूर ये समंदर था। ये समंदर बहुत बड़ा था जिसमें बहुत सारे लकड़ी के पुल बनाए गए थे, जिससे इंसान काफी आगे तक जा सकता था। अगर ये कहा जाए कि समंदर के बीच तक जा सकता था बिना पानी में जाए तो ये गलत नहीं था। इसके आगे काफी फासले पर छोटी छोटी बोट्स थी जिसमें सिर्फ 2 लोग ही सफ़र कर सकते थे। यकीनन वो सिर्फ कपल्स के लिए बनाई गई जगह थी और यकीनन यहाँ सिर्फ हनीमून कपल्स ही आते होंगे। और इसने देखा था वहीं आगे की तरफ जाते हुए लकड़ी के इस पुल पर खड़े लोग फायर बलून्स को हवाओं में भेज रहे थे। वो बहुत एक्साइटेड होकर ये सब कुछ देख रही थी। इसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बल्कि इसका तो इरादा भी था खालिद के साथ मिलकर ये अजीब-ओ-गरीब हरकत करने का। पहले तो इसे लगा कि यकीनन ये बच्चों की हरकतें होंगी, लेकिन अब इसे पता चला था कि यहाँ बड़े-बड़े लोग भी कागज से बनाई गई इस थैली में एक छोटा सा दिया रखकर जलाते थे। और इसने देखा था इस दिए के नीचे कुछ लटक रहा था, लेकिन क्या था वो? शायद कोई पेपर था जिस पे कुछ लिखा हुआ था। हाँ, वो लोग कुछ लिख भी रहे थे। इसने दूर से देखा कायसान अब भी अपने मोबाइल पर मसरूफ था। इसे ये काम करना था और कायसान पता नहीं कौन सी गप्पे लगाने में मसरूफ हो गया था। अजी सुनते हैं, जल्दी कीजिए ना, मैंने गुब्बारा उड़ाना है, आग जलानी है गुब्बारे में। इसने दूर से इसे आवाज लगाई थी। कुछ लोग इनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे, लेकिन शायद इनमें से कोई भी उर्दू नहीं जानता था। कायसान ने 2 मिनट रुकने का इशारा किया था। वो बड़ी मुश्किल से हवा में सर हिलाती एक बार फिर से आसमान पर चमकते कई सितारे देखने लगी, जो आग की वजह से थे। बोलो, क्यों फोन किया है तुमने? इसने इस दफा भी पहली ही कॉल पर इसका फोन उठा लिया था। कायसान ने इसके लहजे में खौफ सा महसूस किया था, एक डर महसूस किया था। और यही डर वो महसूस करना चाहता था। वो इसे डराना चाहता था। जो कुछ इसने किया था इसे इसके अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। तुम्हें मेरे फोन की इतनी बेताबी होती है, इतना ज्यादा शिद्दत से इंतजार करते हो मेरे फोन का, तो बता दिया करो ना यार। मैं तुम्हें दिन में 2-3 दफा फोन कर लिया करूंगा, कम से कम तुम्हारी बेचैनी तो कम होगी ना। अभी तुमने मुझे देखा ही नहीं और तुम मेरे इतने दीवाने हो गए कि मुझसे बात के बगैर तुम्हें सुकून नहीं मिलता। मुझे देख लिया तो तुम तो बिल्कुल दीवाने हो जाओगे। वो इसकी हालत के मजे लेते हुए बोला, जबकि मजर पाश ने मुट्टियां भेजी थी। बोलो, क्यों फोन किया तुमने? इसने गुस्से से सवाल किया था, जबकि कायसान ने जरा उकताए हुए अंदाज में आसमान पर चमकते कई छोटे छोटे सितारे देखे। तुम्हें ये बताने के लिए कि तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है और मेरी नज़र इस पर है। अपने दिमाग से ये बात निकाल मत देना। हमेशा याद रखना, तुम्हें 100 क्या 1 करोड़ बॉडीगार्ड्स भी अपने घर लगा दो ना, तब भी तुम इसे मुझसे बचा नहीं सकते। एक एक सेकंड की खबर है मुझे। एक वीडियो भेजी है, चेक कर लेना। इसने फ़ोन बंद करते हुए कहा था, जबकि अगले ही लम्हे इसे एक वीडियो रिसीव हुई। मजर पाशा परेशानी से इस वीडियो को खोलकर चेक करने लगा था।
اس نے پہچاننے میں زیادہ وقت نہیں لگایا تھا، یہ اس کی بیٹی کا کمرہ تھا اور اب جو نظر آ رہا تھا وہ اس کی بیٹی کا واش روم تھا جہاں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو کیا اس نے اس کی بیٹی کا MMS بنایا تھا؟ کیا اس نے اس کی بیٹی کی اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی؟ اس کے ہاتھ پوری طرح سے کانپ رہے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو ختم ہو گیا تھا۔ اس کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ اس ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا جب اس کا فون ایک بار پھر سے رنگ ہونے لگا۔ اس نے غصے سے فون پر چمکتے نمبر کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے کال اٹینڈ کر کے اپنے کان سے لگایا۔ اس ویڈیو میں تمہاری بیٹی بھی ہو سکتی تھی مظہر پاشا۔ اگر میں چاہتا تو جس طرح میں نے تمہاری بیٹی کے کمرے اور واش روم کی ویڈیو بنائی، میں اس کی نہاتے ہوئے بھی ویڈیو بنا سکتا تھا۔ اور پھر تم جانتے ہو کہ اس کے ساتھ میں کیا کرتا؟ ارے تمہیں تو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے، تم نے تقریباً 1000 سے زیادہ معصوم لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھی ہے، ان کا MMS بنایا ہے۔ بے شک تمہاری بیٹی صرف 14 سے 15 سال کی ہے، لیکن پھر بھی میرے دوست تمہیں تو پتا ہے کہ لڑکی بہت جلد بڑی ہو جاتی ہے، اسے ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یقیناً تمہاری بیٹی بھی سمجھ جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر شاید وہ وہی کرے گی جو MMS لیک ہونے کے بعد لڑکیاں کرتی ہیں۔ اندازہ تو ہوگا ہی تمہیں، اگر نہیں اندازہ تو بتا دے تم یار۔ میں خودکشی کی بات کر رہا ہوں، اس نے پرسکون انداز میں کہا تھا جبکہ مظہر پاشا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ بات اس کی بیٹی پر آ چکی تھی، جو سب وہ آج تک کرتا رہا تھا وہی اس کی بیٹی پر آ رہا تھا، جو کچھ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہی سب کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ ابھی تک ہوا کچھ نہیں تھا لیکن ڈر اسے اندر تک ہلا کر رکھ چکا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی سیکیورٹی ٹائٹ کروا لی تھی، اس نے بہت سارے باڈی گارڈز کو ہائر کر لیا تھا، اپنی بیٹی کو کہیں آنے جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ڈر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مکافات عمل بہت بھاری ہوتا ہے، تم آج جو کرتے ہو وہ کل تم پر آئے گا، تم نے جو کیا اس کا پھل تم دنیا میں ہی پاؤ گے۔ یہ جو تمہارے راستے میں آ رہا ہے نا، یہ تمہارا وہی کیا دھرا ہے جو تم نے کیا ہے، وہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تیار ہے نا، میں کبھی بھی وار کر سکتا ہوں مظہر پاشا، کبھی بھی، اور میں ایسا وار کروں گا کہ تم اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ یہ ویڈیو تمہیں یقیناً پسند آئے ہوگی، لیکن اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ تمہیں نہیں آئے گی بلکہ ان ویب سائٹ پر آئے گی جہاں تم ویڈیوز لکھ کر کے پیسہ کماتے ہو۔ وہ اپنی بات ختم کرتا فون بند کرتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف گیا تھا جو کب سے منہ بنائے کھڑی تھی۔ جائے چلی جائے واپس، مجھے نہیں بات کرنی آپ سے، ہنی مون پر آپ مجھے لے کر آئے ہیں لیکن بات اپنی ان دونوں چمچوں سے کرتے رہتے۔ اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تو ان دونوں کو لے کے آتے نا میری جگہ۔ وہ جیسے ہی واپس وہاں پہنچا تھا، وہ زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سو سوری جان، بس وہ بات کرے تھے ختم کرتے تو میں آتا نا۔ اور ویسے ہنی مون پر صرف بیوی کے ساتھ آیا جاتا ہے، چمچوں کے ساتھ نہیں۔ وہ اس کی بات میں سے لفظ پکڑتے ہوئے بولا تو اس نے منہ بنا کر اس کی نقل اتاری تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہے اوپر، مجھے بھی ایسے غبارے لا کر دے، میں نے بھی اڑانے ہیں ایسے نیچے سے آگ لگا کر۔ اور وہ جو پرچیاں لٹک رہی ہے نا، مجھے ویسی ہی پرچی بھی لٹکانی ہے، اور پوچھ کے آئیے گا کہ پرچی میں کیا لکھتے۔ وہ حکم دے رہی تھی جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا اپنی شہزادی کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ آپ کو صرف ترکش بولنی آتی ہے یا لکھ بھی دیتے؟ اس نے اس کے اٹھتے ہی ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آتی ہے لکھنی، لیکن ہم اپنی زبان میں ہی لکھیں گے، وہاں ہواؤں میں کوئی نہیں بیٹھا جو اس پرچی کو پڑھ پائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتا وہاں سے کچھ فاصلے پر بنے ایک چھوٹے سے اسٹور میں آ گیا تھا، اور پھر وہاں سے اس نے کاغذ کے وہ چند لفافے اور چھوٹی چھوٹی موم بتیاں لی تھی، اور اس کے ساتھ ہی نیچے لٹکانے والے کارڈز بھی۔ اس کے نزدیک یہ صرف ایک فضول سی حرکت تھی، ان لوگوں کے مطابق یہ اپنے خدا کو خط لکھتے تھے جس میں یہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتے تھے، اور اگر پھر وہ خواہش پوری ہو جاتی تھی تو وہ یہاں واپس آ کر ایک بار پھر سے یہ غبارہ ہوا میں اڑا دیتے۔ حالانکہ قائزان ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس کے نزدیک یہ سب کچھ بکواس تھا، شرک تھا۔ ہوا میں کون بیٹھا تھا جو ان کی خواہشوں کو پورا کرتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ غبارے بس تھوڑی ہی آگے جا کر کہیں نہ کہیں گر جاتے تھے۔ یہاں سامنے کی طرف ایک کافی بڑا آئی لینڈ تھا، یقیناً وہ آئی لینڈ فضول چیزوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ مرم کو کسی بھی طرح کا ایکسپیرئنس کرنے سے روکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا ہر کام کرے، سو وہ آ گیا تھا اس کے پاس وہ موم بتیاں اور لفافے لے کر۔ اس میں تو کچھ ہی نہیں لکھا، ہم کیا لکھیں گے اس پر؟ وہ کارڈ دیکھتے ہوئے بولی، اسے تو لگا تھا کہ شاید کچھ نہ کچھ اس پہ لکھا ہوگا اور کچھ نہ کچھ ان لوگوں نے لکھنا ہوگا۔ میری جان، اس پر کچھ بھی نہیں لکھتے، صرف اپنے پارٹنر سے محبت کا اظہار کرتے، آسان لفظوں میں اپنی محبت کی تحریر لکھتے۔ جس انسان سے تمہیں محبت ہے ان سب لوگوں کا نام اس کارڈ پر لکھ دو اور اسے ہواؤں میں بھیج دو، اور دعا کرو کہ اللہ پاک ان لوگوں کا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ بنائے رکھے، بس بات ختم۔ اس نے اپنے
अल्फाज में से समझाया था, बल्कि सिर्फ शेख से बचाया था। वो नहीं चाहता था कि वो अपना शौक पूरा ना करे, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि वो अपनी नादानी में शेख जैसा गुनाह करे। जबकि वो एक्साइटेड सी होकर पेन खोलते हुए इस कागज पर नाम लिखने लगी थी। दुआ मत लिखना और ना ही अल्लाह पाक ने। वो लिखने ही लगी थी कि इसने इसका हाथ पकड़कर बोला, क्यों? वो हैरान होकर इससे पूछने लगी थी, क्योंकि ये हर वक्त हवा में नहीं रहेगा, जमीन पर रहेगा, और मैं नहीं चाहता कि हमारे खुदा का नाम जमीन पर जाए। इसीलिए किसी भी चीज पर खुदा का नाम लिखने से पहले 1000 बार सोचो। इसने इसे हिदायत दी थी, जिस पर इसने मुस्कुराते हुए फिर से नाम लिखना चाहा। मेरे ख्याल में बाकी भी किसी का नाम नहीं लिखना चाहिए। इतने प्यारे प्यारे नाम मेरे जहन में बहुत सारे थे, मुझे नाम नहीं लिखने चाहिए। इसने कुछ सोचते हुए कहा था, जबकि बहुत सारे नाम का सुनकर कायसान ने इसे घूर कर देखते हुए वो पेपर पेन इसे छीन लिया था। तुम्हारे ज़हन में कितनी नाम क्यों ना हो, लेकिन मेरे ज़हन में तो बस एक ही नाम है, मेरी जान, मेरी वाइफ़ का, जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, और इसके अलावा मुझे और किसी का साथ नहीं चाहिए। वो पेपर पर इसका नाम तो नहीं लिख रहा था, लेकिन आसान लफ्ज़ों में वो इससे अपनी मोहब्बत का इकरार लिख रहा था। हाँ, तो ये तो मैं भी लिख देती हूँ। लाइए दीजिए, आई लव माय ब्रदर, आई लव माय अम्मी जान, आई लव माय अब्बा जान, थोड़ा-थोड़ा। देखिए, मैंने भी कितने सारे नाम लिख लिए। इसने कार्ड इसे दिखाया था। थोड़ा-थोड़ा प्यार का इज़हार मुझसे भी कर दो। इसके अब्बा जान के आगे थोड़ा-थोड़ा लिख दिया, लिखा। थोड़ा-थोड़ा प्यार का इज़हार मुझसे भी कर दो। इसके अब्बा जान के आगे थोड़ा-थोड़ा लिखा देकर वो काफ़ी सख्ती से बोला था। अरे थोड़ा-थोड़ा क्यों लिखूं? आपसे तो इतना सारा प्यार। वो दोनों बाहें खोले कुछ बोलने ही वाली थी कि कायज़ान की निगाहें इसकी तरफ उठी, तो वो चुप होकर हाथ नीचे कर गई। बच्चों के सामने ऐसे बातें नहीं करते। वो इसकी गाल खींचते हुए बोली, यकीनन इसके इस तरह की आधी अधूरी हरकत पर इसने कायसान के चेहरे की रौनक दिखी थी। इरादा इसे तड़पाने का था। मत करो बात, ऐसी एक दिन आएगा, चिल्ला चिल्ला कर पूरी दुनिया को बताओगी कि तुम्हें कायसान काज़मी से मोहब्बत है। और ऐसा वक्ती 2-3 सेकंड का प्यार मुझे भी नहीं चाहिए। मुझे वो प्यार चाहिए जो इस रात तुमने मेरे सीने से लगकर मेरे दिल के मुकाम पर किया था। और इसके बाद मुझे किसी इज़हार की ज़रूरत ही नहीं रही। वो जैसे बात खत्म करते हुए उसके हाथ से कार्ड लेकर इस मुँह पर मोमबत्ती के साथ बाँधते हुए इसे आग लगाने लगा था, जबकि वो मुस्कुराते हुए अपने होंठ काटती, नज़र झुकाती, इस गुब्बारे के नीचे छोटी-सी मोमबत्ती को आग लगाने लगी थी। इसके अंदाज़ पर वो मुस्कुराते हुए इसकी भरपूर मदद कर रहा था। देखिए ना, वो वाला हमारा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। और ऊपर चला जाए ना, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि सबसे ऊपर वाला हमारा वाला हो। वो बहुत एक्साइटेड से दोनों हाथों में चेहरा रख के आसमान की तरफ देख रही थी, जबकि वो बस इसके चेहरे की खुशी देख रहा था। यूं मुस्कुराती हुई वो कितनी प्यारी लग रही थी, ये तो सिर्फ इसका दिल जानता था। कोई पतंग थोड़ी है कि वो ऊपर चला जाएगा, मुस्कुराते हुए बोला। अरे नहीं, पतंग होता तो ना जाने कितना ऊपर चला गया होता। आपको पता है, यावर भाई आहत भाई की ना रोज पतंग पे लड़ाई होती थी। यावर भाई रोज अपना आहत भाई का पतंग काट देते थे, और फिर अम्पा ना हमेशा यावर भाई को ही मारते थे। लेकिन बड़ा मजा आता था हर रोज आहत भाई की रोती हुई शक्ल देखकर। आहत भाई कभी भी यावर भाई का मुकाबला नहीं कर सकते, सिर्फ बाद में रोनी शक्लें बनाकर अब्बा से शिकायत लगा सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई इंसान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर इसे फजूल में उंगली भी नहीं करनी चाहिए। बाद में फिर रोने धोने शुरू हो जाते। खैर, आहत भाई तो इतना बड़ा जीरो है, आपको पता है वो कभी कुछ नहीं कर सकते। इनसे तो तौबा, इनसे तो बीए भी क्लियर नहीं हुआ, 4 साल लगाए, फिर जाकर कहीं अब्बा ने बहुत सारे पैसे दिए तो इनकी डिग्री पास हुई। बल्कि पास भी नहीं हुई, झूठी डिग्री के कागजात है इनके पास। वो मज़े लेते हुए बता रही थी, तुम्हें तुम्हारा आहत भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही तुम्हें तमन्ना बाजी पसंद है। वो कुछ याद करते हुए इससे पूछने लगा, मुझे वो तीनों भाई बहन नहीं पसंद, और इनकी अम्मा के साथ वो देखे हमारे वाला ज्यादा ऊपर जा रहा है। वो एक्साइटेड होकर उठ खड़ी हो गई थी, जबकि वो भी इसके साथ ही उठकर खड़ा हो गया। नहीं, वो हमारे वाला नहीं, हमारे वाला थोड़ा सा नीचे है। हमने जो धागा लगाया था ना, वो थोड़ा लंबा था बाकियों के मुकाबले में। इसने इसकी खुशफहमी को दूर किया था। अच्छा, मतलब वो ऊपर वाले से जो थोड़ा सा नीचे है वो हमारा वाला है। इसने एक और को देखते हुए कहा, तो कायजान ने हाँ में सिर हिलाया। अगर तुम्हारी सौतेली माँ और तीनों बहन-भाई को कुछ हो जाए तो तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा? वो जैसे पिछली बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसने एक नज़र से देखा।
ना अच्छा ना बुरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे सबसे ज्यादा गर्ज अपने भाई से जो मेरे पास है, हमेशा मेरे आस पास रहेगा। मुझे कोई मतलब नहीं इन लोगों से, वो कभी मेरे अपने थे ही नहीं। तो इन लोगों से क्या कोई गर्ज रखनी है। हाँ, अब्बा से थोड़ा सा मतलब है, आखिर बाप है ना हमारे, लेकिन सिर्फ हमारे थोड़ी ही है, इनके भी तो है। तो भाई तो वैसे भी कहते हैं अब्बा को वो लोग ही रख लेंगे, हमें नहीं चाहिए। वो आंख दबाकर शरारत से बोली तो कायसान मुस्कुराकर एक बार फिर से हवा में उड़ते अपने गुब्बारे को तलाश करने लगा। गुम कर दिया ना, अब कैसे पता चलेगा हमारे वाला कौन सा है। एक तो बातों में लगा लेते हैं। मुझे वो एक बार फिर से आसमान की तरफ निगाहें करते इस दिए को ढूंढने लगी थी जो इसने जलाया था, लेकिन वो तो इन बहुत सारों में कहीं खो गया था। वो वाला हमारा है। इसने आइलैंड के करीब जाते ही गुब्बारे की तरफ इशारा किया था। वो तो वहां पर गिर रहा है कायजात, वो परेशानी से कहने लगी थी। गिरने तो हमने कौन से इस पर कोई नाम लिखा है, वो कान थे उचकाकर बोला था। हाँ, ये भी सही कहा आपने, हमने कौन सा इस पर कोई नाम लिखा था। वैसे हम सोएंगे कहाँ? मेरा मतलब है क्या हमने वापस होटल नहीं जाना? नहीं, हमने वापस होटल नहीं जाना बल्कि वहां जाना है। इसने सामने की तरफ एक बोर्ड की तरफ इशारा किया था जो एक वैन थी बोर्ड थी। ये क्या है, डब्बा? जाने मन, वो डब्बा नहीं, वो वैन थी बोर्ड है। इसके अंदर बेड भी है, खाने पीने का सामान भी है, बल्कि जरूरत का सारा सामान हमें वहां पर मिलेगा। और ये सारी रात यूं ही पानी में हर तरफ घूमती रहेगी। वहां पर बनी ग्रिल के साथ तुम बहुत सारी तस्वीरें भी बना लेना। इसने इसे खुश किया था। अरे वाह! ये तो कमाल हो गया। बिल्कुल किसी शिप की तरह, जैसे कोई बहरी जहाज होता है, बिल्कुल छोटा-सा बहरी जहाज। वो खुश हो गई थी और कायज़ान का मकसद भी तो इसे खुश करना ही था। हाँ, बिल्कुल, तो क्या ख़्याल है? अब हमें आराम करने के लिए चलना चाहिए? इसने इसकी तरफ देखते हुए पूछा तो इसने फ़ौरन नफ़े में सर हिलाया था। पहले इस तरफ चलकर देखते जा। जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तब मैंने रास्ते में वहाँ एक पानी से बनी जगह को देखा था और आपको पता है वहाँ ना 3-4 लड़के बीच में छलांगे लगाकर इन अंग्रेज़ों को कुछ निकाल कर दे रहे थे। मुझे वो चीज़ बड़ी मज़े की लग रही थी, मुझे भी करनी है। वो फ़रमाइश करी थी जबकि कायज़ान ने इसकी तरफ देखा था। वो जानता था इस तरफ इसी गहरे पानी का एक हिस्सा है, जो पुराने सुल्तानों के ज़माने में गार खोद कर बनाया गया था। वो इतना गहरा पानी था कि वहाँ से बहुत सारे रास्ते निकलते थे और अक्सर चीज़ें वहाँ पर गुम भी हो जाया करती थी। इस जगह पर ना जाने कितनी टर्किश फौजियों की लाशें दफन हुई थी और कई लोग तो वहां पर गुम होकर कभी वापस मिले भी नहीं थे, लेकिन अब ये जगह तफरीह के लिए बना दी गई थी। तो इस हिस्से के गारों को बंद करके पैसे कमाने का एक अलग तरीका इजाद कर लिया गया था। जानवर एक इंतहाई फिजूल चीज है, बिल्कुल इसकी तरह जिसका कोई मकसद नहीं है। इतने सामने उड़ते गुब्बारों को देखते हुए कहा था। अरे नहीं ना, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही थी, चलकर देखते हैं ना, एक दफा करने में क्या हर्ज है। वो मासूमियत से होठ बाहर लटकाते हुए बोली तो कायसान ने अगले ही लम्हे इसके लबों पर झुकते हुए इसके निचले लब को कैद कर लिया था। अपनी मोहब्बत की मोहर इसके होठों पर सबत करते हुए वो इसका हाथ थामते से घसीटते हुए इस तरफ लेकर जा रहा था, जबकि वो भी खुशी से इसके साथ भागते हुए इस लकड़ी के पुल से गुजर गया। वो इस जगह से बाहर निकल कर आया तो इसे सामने कुछ लड़के रंग बिरंगे पत्थर लिए खड़े नजर आए थे। वो इस लड़की के पास आकर इसके बारे में तफसील पूछने लगा था। ये पत्थर जोड़ियों की सूरत में है, हर पत्थर 2 रंगों में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ आए जोड़े इन पत्थरों को खरीद कर इस पानी में फेंकते हैं और अगर वो लड़का दोनों पत्थर ढूंढ कर ले आता है तो इसका मतलब है कि वो कपल हमेशा एक साथ रहेगा। और अगर वो लड़का वो पत्थर ढूंढने में कामयाब नहीं होता तो इसका मतलब है कि इस कपल का साथ बहुत थोड़ा है। वो सामने खड़ा लड़का अपनी ज़बान में इसे समझा रहा था, जबकि कायसान को ये सोच बहुत ही फ़िज़ूल लग रही थी और इसके चेहरे के गुस्से से वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि लड़के ने कोई उल्टी-सीधी बात की है। चलो ये बहुत ही बकवास सा कोई खेल है, हम नहीं खेल सकते इसको। वो इसका हाथ थामे इसे वापस लेकर जाने लगा था, जबकि मर्द का वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। नहीं, नहीं कायसान, देखे तो सही कितने खूबसूरत पत्थर है और इतने बड़े-बड़े पत्थर है। आए तो सही ना, देखे सारे कपल्स कर रहे, एक कपल वो पत्थर वहां नीचे फेंकता है और फिर वो लड़का वो दोनों पत्थर ढूंढ कर लाता है, तो देखिए ना कपल कितना खुश हो जाता है। हम भी करेंगे ना, मुझे बहुत मजे का लग रहा है। ये वो जिद कर रही थी जबकि कायसान को ये बहुत ही फिजूल गेम लग रही थी। 2 पत्थरों से भला कैसे साबित हो सकता है कि किसी का साथ जिंदगी भर का है या नहीं। अरे बकवास कर रहे हैं वो लोग कहते हैं कि अगर वो दोनों पत्थर नहीं मिले तो जोड़ी टूट जाएगी। फुजूल वाहियात में कुछ नहीं करने वाला ये। चलो हम चलते हैं, बहुत देर हो गई है, तुम्हें भी लग रही होगी ना। वो उसे समझाते हुए बोला था, लेकिन मैम की तो जिद की ही कोई हद नहीं। वो तो पक्का ये गेम खेलने वाली थी। मुझे नहीं जाना, मुझे वो गेम खेलनी है, प्लीज चल लेना कायजान। और वैसे भी हम कौन से इस चीज पर यकीन करें, सिर्फ पत्थर फेंक कर चेक तो करते हैं कि वो बच्चा ढूंढ कर लाता है या नहीं। और मुझे यकीन है कि वो बच्चा दोनों पत्थर ढूंढ लाएगा, वो यकीन से कह रही थी।
کا احسان کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ وہ لڑکا تقریباً سبھی کے ہی پتھر ڈھونڈ کر لا رہا تھا۔ بہت کپلز تھے جو نا امید ہو کر جا رہے تھے، ضروری نہیں تھا کہ ان کا پتھر نہ ملے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم وینٹی بورڈ پر میں جا کر آرام کریں گے۔ اس نے شرط رکھی تھی جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تو وہ اسے لے کر واپس اس پانی کے حصے کے پاس آ گیا تھا۔ تو میرے پیارے ویورز، یہ تھی ناول مرمے کا احسان کی ایپیسوڈ 25۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔